Yes, welcome to another session of Vedic Maths. Basic course. Today's topic is going to be divisibility. So I hope you're ready for this session. This topic is very important because most of the time I've seen students struggling with the prime factorization. They don't know, does this number go by 7, 11, 13, 17, 23, right? So many numbers are there, 29, 19. So we are only taught in school divisibility of 2 to 11. Most of the time I have seen in the books up to 11 only. But in this course, we are going to tell you the divisibility of any number. We are going to get the rule from which you can figure out the divisibility of any number. First of all, I'm going to repeat this so that we have the foundation and we realize that we are doing from the basic stuff. That's why the name of the course itself is basic, right? So the divisibility of 2, let's start with the divisibility of 2. Topic over here is divisibility, right? Divisibility. I hope the spelling is correct. And the sutra is called Ekadika Pruvena, but I'm not interested in that right now. Also, you are not. So, first of all, divisibility by 2, I think already you know. Divisibility by 2 is nothing but when the number ends by an even number or is divisible by 2. So then it is divisible by 2. For the second thing, the divisibility of 3 is add the numbers, right? If those digits go by the 3 number, then this number also goes by 3. So I hope you know the 3. Then the third one is the fourth number की divisibility. 4 कैसे बताते हैं कि 4 की divisibility क्या है? Simple. What are you gonna do? Last two digits you're gonna check out. Let's say I've given you such a huge number. You're gonna check out the last two digits. Okay. Do you know there's another method for checking the divisibility of 4? But we'll come to that later. Now, for the fifth one, I'm going to erase this. Please, right? It's gonna confuse otherwise, right? Okay. अब हम आते हैं फाइव डिजिबिलिटी के फाइव डिजिबिलिटी आपने पढ़ी हुई है अगर एन में जीरो और फाइव आता है आई एम नॉट गोना वेस्ट टू मच टाइम इनटू दिस बेसिक वंस जीरो और फाइव आता है जिसके एंड में वो क्या होता है वो हमारा फाइव से डिजिबल होता है सिक्स के लिए क्या होता है जो टू और थ्री दोनों से जाता है अगर टू और थ्री दोनों से जाएगा तो थ्री से भी जाएगा जैसे आई गिव यू अ नंबर लेट्स से आई गिव यू 27 so it goes by 3 only right but doesn't go by 2 so it is not divisible by 6. This goes by 3 also and 2 also. That's why this goes by 6. Easy. अब बात करते हैं 7 की यहां से हम वैदिक मैथ्स पे स्टार्ट करेंगे 7 की डिजिबिलिटी क्या होती है देखो मोस्ट ऑफ द टाइम इन सम बुक्स 7 की डिजिबिलिटी दी ही नहीं होती ठीक है लेकिन राइट नाउ आई एम गोइंग टू टीच द डिजिबिलिटी ऑफ नॉट जस्ट 7 so many numbers. This is a Vedic math sutra and technique is called osculation. Positive osculation, negative osculation. ये क्या होता है अभी मैं आपको समझाऊंगा. See, if I use the table of 7, if I just write the table of 7, this is 7, 14, 21, 28, 35, right? So on, 42, 49, 51, and 51, bizarre, 63 and 70. Now, if I check such numbers which are closer to the 10s, 20s, 30s, zero wala digit, right? So this one, you can see closest, and this one, 51, 50 is closest. So I'm going to teach you the what is the meaning of positive and negative oscillation first of all, and that is going to tell you the rule. आप खुद रूल बनाएंगे डिजिबिलिटी का. देखिए अगर 21 से 20 जाना है तो आप क्या करेंगे आप माइनस करके पहुंचेंगे -1 करके राइट सो आपको क्या करना पड़ेगा यूनिट डिजिट को 2 से मल्टीप्लाई करके सब्ट्रैक्ट करना है क्योंकि आप माइनस करके पहुंचेंगे सब्ट्रैक्शन करके पहुंचेंगे राइट सर आप क्या करें आई एम नॉट गेटिंग इट जस्ट हैव सम पेशेंस आई एम गोइंग टू टेल यू व्हाट इट इज लेट्स से आई गिव यू 1764. You take the unit digit, we are checking it does it go by 7 or not. You take the unit digit and multiply by 2. So you get 8 right below the remaining digits. Okay. Now you subtract what you're gonna get. You're gonna get 8, you're gonna get 6, you're gonna get 1. Again you do it. Multiply by 2 again and subtract from the remaining, get 0. And 0 is divisible by every number. That means this whole number is divisible by 7. Okay. So आप क्या करेंगे आप यूनिट डिजिट को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और रिमेनिंग से सब्ट्रैक्ट करेंगे एक और एग्जांपल लेते हैं नो नीड टू वरी ओके लेट्स टेक वन मोर एग्जांपल आई हैव 1 3 2 6 let's say okay so what I'm going to do I'm going to multiply the unit digit by 2 12 I'm going to subtract from remaining so 0 2 1 again I'm going to multiply by 2 0 multiplied by 2 is 0 so I'm subtract from remaining 12 doesn't go by 7 so this number also doesn't go by 7 very easy right so this is the technique and this was negative oscillation क्योंकि आप पीछे गए हैं नेगेटिव क्या आपको पता है एक नंबर की एक से ज्यादा डिजिबिलिटी हो सकती है लेकिन हमें एक ही पढ़ाई जाती है इसलिए मैं बाद में पीछे भी आऊंगा जो बेसिक वाले हैं लेकिन अभी आप इस पे बात करें
49 अगर आप देखें 49 50 पे जाता है, राइट? लेट मी चेंज द कलर टू रेड so that is visible to you in a better way. So if I go for 50, now you are doing plus 1. So this is addition. आप add करके पहुंच रहे हैं इस बार. So you're gonna multiply the unit digit by 5 this time, and you're gonna add, not subtract. Let's check if it is applies over here. ये जाना चाहिए 7 से इस method से भी. So 4 5s are 20 प्यारे बच्चे. So this 6 9 1. Again let's do it. 6 5s are 30. Add in the remaining, and what you get 49. 49 आता है 7 के टेबल में, and this also comes. Alright, so this is pretty amazing, right? So I hope it is clear कि एक नंबर की दो दो डिजिबिलिटी हो सकती है. इस वाले में हमने माइनस किया क्योंकि आप नेगेटिव करके पहुंचे हैं, इस वाले में प्लस करके पॉजिटिव करके पहुंचे हैं. मतलब आप यूनिट डिजिट को 2 से मल्टीप्लाई करके अगर माइनस करते हैं तो भी सही है, और यूनिट डिजिट को 5 से मल्टीप्लाई करके प्लस करते हैं वो भी ठीक है. तो ये थी 7 की डिजिबिलिटी प्यारे बच्चों. अब आते हैं हम 8 की डिजिबिलिटी पे. 8 की डिजिबिलिटी के लिए हम लास्ट के 3 नंबर देखते हैं. फॉर एग्जाम्पल आप ये तीनों नंबर देखेंगे, लास्ट के 3 नंबर, और अगर लास्ट के 3 नंबर डिजिबल है तो ये भी डिजिबल होगा. सिंपल. ओके, लास्ट का 3 नंबर आप चेक कर सकते हैं, डिजिबल नहीं है तो ये भी डिजिबल पूरा नंबर नहीं होगा. मैं इन पे बाद में भी आऊंगा कि आपके पास इनकी भी और शॉर्ट ट्रिक्स होती हैं एक्चुअली, बट अभी आप बेसिक वाला समझें जो है. अब इनके में क्या होगा, एक क्योंकि ये सारा एनसीईआरटी बुक्स में गिवन होता है, इसलिए मैं इनके वैदिक मैथ्स के ट्रिक्स नहीं बता रहा हूँ, क्योंकि बच्चों को बचपन से ही पता है, आपको भी पता है, इसलिए मैं इनको चेंज नहीं कर रहा हूँ. आई एम डूइंग दोज नंबर्स जो गिवन ही नहीं होती बुक में, एंड समथिंग इंटरेस्टिंग ऑल्सो. ठीक है. और बाय द वे एक चीज बता दूं मैं आपको, टू जो है टू की पावर वन होता है, फोर जो है वो 2 into 2 होता है, 2 की पावर 2, और जो 8 होता है वो 2 into 2 into 2 होता है, राइट? 2 into 2 into 2 होता है 2 की पावर 3. क्या आपको याद है, 2 के लिए लास्ट का डिजिट देखते हैं 1 डिजिट, 4 के लिए लास्ट के 2 डिजिट देखते हैं, 8 के लिए लास्ट के 3 डिजिट देखते हैं. ये ऐसी गॉट द पैटर्न. और 16 के लिए लास्ट के 4 डिजिट देखते हैं. इस तरीके से बना हुआ डिजिबिलिटी. ठीक है. चलो आगे चलते हैं 9 के लिए. 9 के लिए क्या डिजिबिलिटी है, और 9 के लिए आप सारे नंबर्स को ऐड करें, और अगर ऐड करने पे वो 9 से जाता है तो वो नंबर भी जाएगा. लेट्स से आई गिव यू अ ह्यूज नंबर. ठीक है. आप सारे डिजिट्स को ऐड करें तो 32 आएगा. 32 डजंट गो बाय 9, सो दिस आल्सो डजंट गो बाय 9. सिंपल. 10 की डिजिबिलिटी आपको पता है, लास्ट में 0 होना चाहिए, तो अगर वो लास्ट में 0 है तो 10 से डिजिबल होगा. अब 11 की डिजिबिलिटी देखते हैं. 11 की डिजिबिलिटी बुक्स में दी होती है, इसलिए मैं 11 वाला भी ऐसे बता के आगे चल रहा हूँ. 11 की डिजिबिलिटी क्या होती है, लेट्स से आई गिव यू 1331. हमें चेक करना है कि 11 से जाता है नहीं जाता. तो बाय द वे 11 का क्यूब है, लेकिन ठीक है, अभी आप क्यूब जो है आप मेरे से एडवांस कोर्स में पढ़ेंगे. ठीक है. स्क्वायर आप बेसिक कोर्स में पढ़ेंगे. नेक्स्ट सेक्शन हमारा स्क्वायर पे ही है. तो आप क्या करते हैं, आप ऑड प्लेसेस वाले नंबर लेते हैं, उनको ऐड करते हैं, 1 + 3 4. फिर आप इवन प्लेसेस वाले सम लेते हैं, सेकंड और फोर्थ, 3 + 1 4, और उन दोनों को सब्ट्रैक्ट करते हैं 0. तो 0 सबसे जाता है तो 11 से भी जाएगा, इसलिए नंबर 11 से डिविजिबल होता है. एक और बार करते हैं, जैसे आई गिव यू दिस. ओके. नाउ फर्स्ट, थर्ड, फिफ्थ एंड सेवंथ, राइट? और तो 4 3 7, 7 7 14, 14 3 17, माइनस 5 4 9, 9 और 8 17. फिर से 0, हमेशा 0 नहीं आएगा, हो सकता है 11 आ सकता था, 22 भी आ सकता था, 35 भी आ सकता था. तो इस तरीके से 0 आ रहा है, 0 सबसे जाता, तो ये ह्यूज नंबर भी 11 से जाएगा. नो नीड टू डू ऑल दिस लॉन्ग डिवीजन. ओके, आई होप दिस इज क्लियर. अब आते हैं इंटरेस्टिंग बातें. देखिए 12 के लिए क्या होता है, 12 के लिए अगर नंबर 4 और 3 दोनों से जाता है, दोनों से जाएगा, तो 12 से भी जाएगा. सर आपको कैसे पता? देखो कोई भी नंबर अगर होता है, इसकी डिजिबिलिटी अगर चेक करनी होती है, आप उसको फैक्टराइज कर लें इसे. अगर वो फैक्टराइज में जो भी दो नंबर है, अगर वो को प्राइम है, को प्राइम मतलब जिसमें कॉमन बस 1 हो, अगर वो उन दोनों से जाता है तो इससे भी जाएगा. जैसे आपने 6 में देखा था, 6 2 और 3 में बढ़ सकता है, तो जब 2 से और 3 से दोनों से जाता है तभी 6 से जाता है वो नंबर, जैसे 18, राइट? सेम वे ओवर हियर, अगर 4 और 3 दोनों से जाएगा तभी 12 से जाएगा. ठीक है, एक टेक्निक है चेक करने के लिए. अब 13 पे आते हैं. 13 पे अब हम सूत्र यूज करेंगे क्योंकि बुक्स में नहीं दिया होता. वैदिक मैथ्स यूज करेंगे. 13 का टेबल, 13 26 13, अरे पकड़ा गया, 40 के पास. +1 करेंगे 40 पहुंच जाएंगे, +1 की, राइट? तो आप यूनिट डिजिट को 4 से मल्टीप्लाई करके ऐड करेंगे. यस. चलो मैं एक बड़ा सा नंबर देता हूँ, 1379112, राइट? यूनिट डिजिट को 4 से मल्टीप्लाई किया तो 4 टू 8, और ऐड करेंगे रिमेनिंग में, व्हाट विल गेट 137919. फिर से यूनिट डिजिट को 4 से मल्टीप्लाई किया 36, ऐड किया आपने 13827. फिर से आपने यूनिट डिजिट को मल्टीप्लाई किया 4 से 28 1410. 0 को आप 4 से करेंगे 0 ही आएगा प्यारे बच्चे, राइट? सो 141. और फिर से आपने यूनिट डिजिट को 4 से मल्टीप्लाई किया तो ये गॉट 4. 18 क्या आता है 13 के नहीं, तो ये नंबर भी नहीं जाएगा.
ठीक है, दैट्स हाउ ब्यूटीफुल दिस सूत्रा इज, ऑस्कुलेशन कहते हैं इसको, ठीक है। और आपने अभी पॉजिटिव ऑस्कुलेशन करा है। बाय द वे अनदर थिंग मैं आपको बता दूं, इसको संस्कृत में एकाधिका पूर्वेना सूत्रा कहते हैं, ठीक है। एकाधिका मतलब एक की कमी या फिर फायदा करके आप पहुंचते हैं ऑस्कुलेशन पे, ठीक है। चलिए अब हम बात करते हैं बाकी नंबर्स की भी। 17 जो जो बुक्स में नहीं दिया होता मैं उनकी बात पहले करूंगा, जो इंपॉर्टेंट भी है। जैसे 17 की बात करते हैं। इंपॉर्टेंट कौन नंबर्स है? 17, 19, क्योंकि प्राइम फैक्टराइजेशन में बच्चों को बहुत परेशान करते हैं। 23, इनकी ही बात करेंगे। बाकी आप खुद से रूल बना के फिगर आउट कर सकते हैं, कोई भी नंबर का आप निकाल सकते हैं, राइट। सो 13 का यूज करते हैं। 13 का हो गया, 17 का सॉरी। 17, 34, 51, अरे पकड़ा गया। सो ये 50 माइनस करके पहुंच रहे हैं, तो यूनिट को 5 से मल्टीप्लाई करके माइनस करेंगे। लेट्स से आई गिव यू अ नंबर 4397, तो अब यूनिट को 5 से करिए, क्या आएगा? 35। सब्ट्रैक्ट करिए इनमें से, क्योंकि आप माइनस करके पहुंचे, तो 404। फिर से 5 से तो कितना आएगा? 20। माइनस करिए 20, क्या 20 17 से जाता है? नहीं जाता, तो ये भी नहीं जाएगा। बल्ले बल्ले। ओके, तो आप 17 से डिवाइड करने की कोशिश ना करें सिपाही। तो इसकी डिजिबिलिटी क्या होगी? यूनिट डिजिट को 5 से मल्टीप्लाई करके माइनस करना है। ऐसे आपको पता है इसकी और भी डिजिबिलिटी होगी आगे। एक और ऐसा नंबर होगा जो हमारे जीरोस वाले क्वांटिटी 20, 30, 40, 50, 60 ऐसे के पास पड़ेगा, तो उसमें पॉजिटिव से पहुंचेगा। अगर नेगेटिव ऑस्किलेशन है तो पॉजिटिव भी होगा उसके। ये एक एक पैटर्न है एक्चुअली, बहुत ही ब्यूटीफुल पैटर्न। अब 19 का देखिए, 19 19 का तो पहला नंबर ही है प्यारे बच्चों। देखो 19, 20, राइट। +1 करके पहुंच सकते हैं, मतलब ट्वाइस करिए और ऐड कर दीजिए, राइट। चलो आप चेक करें, एक 19 का एग्जांपल लेते हैं। लेट्स से आई गिव यू 1 1 6 2 8, चेक करते हैं 19 से आता है। 8 का ट्वाइस 16, सो ऐड करो रिमेनिंग में। 8 7 1 1। 8 का ट्वाइस 16 अगेन, ऐड करो रिमेनिंग में। सो दिस विल बी 13 3 3। अभी मेरे को पता चल गया, लेकिन ठीक है, अगर आप देखना चाहते हैं आगे और। सो 3 का ट्वाइस 6, कितना आएगा? 19, और 19 आता है 19 के टेबल में 1 जा, क्योंकि 133 जो होता है ना, 7 7 जो होता है 19 7 जा, तो इसको मुझे पता चल गया था 19 के टेबल में मुझे याद। आपको भी याद होना चाहिए, बट इट्स ओके, इसलिए मैंने आगे भी कर दी। चलो आगे चलते हैं। और बाय द वे टेबल भी आप वैदिक मैथ से लिख सकते हैं, वो भी बात करूंगा मैं बाद में, ठीक है। सब कुछ वैदिक मैथ से कर सकते हैं आप। मेरा एडवांस कोर्स में जब आएंगे मैं आपको ये सब भी पढ़ाऊंगा, लेकिन इस बेसिक कोर्स में हम बेसिक स्टफ करेंगे, ओके। सो 23, अगर आपको 23 की डिजिबिलिटी जाननी है, 23, 46, यस यू गेस्ड इट राइट एक्चुअली। 69 70 पे जाएंगे, +1 करके। सो दैट मीन 7 से मल्टीप्लाई करना है। तो अगर मैं बोलूँ आपको एक नंबर देते हैं आपको 2924, इसको चेक करना है क्या 23 से जाता है? इसको 7 से करो, 28, 10, 12, 3। इसको 7 से करो, 0 ही आएगा। 32 की 32 आता है 23 के टेबल में? नहीं, तो ये भी नहीं है। तो आई होप आप अब खुद से डिजिबिलिटी निकाल सकते हैं एज अ वर्क एक्सरसाइज टू माय ब्यूटीफुल रीडर्स, कैंडिडेट्स, टीचर्स, एडुकेटर्स। आप सब इन सब की डिजिबिलिटी खुद से बनाने की कोशिश करिए। अरे बनाइए, बनेगा। सबकी डिजिबिलिटी आप अब खुद से बना सकते हैं, ठीक है, बिकॉज यू नो द ट्रिक नाउ। ऑल द बेस्ट। नाउ आई विल सी यू इन द नेक्स्ट सेशन with another interesting topic. Tata, bye bye.